There's much that we find glorious in our past. But alongside the glories of this march of human civilization are tragedies. Tragedies that to some may be the necessary cost of glory, but for those who suffer them are a reflection of its injustice and shame. The plight of the indigenous people is one such tragedy. Driven from their lands, deprived of their traditional sources of livelihood, they nonetheless persevere, preserving a way of life that often challenges the inhumanity and unsustainability of the dominant culture. In India, the majority of them, condescendingly called tribals, inhabit an arc-like area that stretches across the middle of the subcontinent. One such location is these hills in Madhya Pradesh near Amarkantak, the source of the river Narmada and one of the foremost pilgrimage centers in India. This is beautiful country. Unfortunately, the tribals who inhabit this land, as is true elsewhere, are poor, unorganized, and exploited. शक्कर सब कुछ नहीं पर अभी शक्कर होगा नहीं। Sahajivan, a small group of inspired and uniquely committed individuals, has taken up the challenge of being a catalyst to progress in this area about 50 kilometers from Shahdol in eastern Madhya Pradesh. During the last 4 years or so, they have been working in 3 villages, spearheading a government-funded watershed development project. However, theirs is a very holistic approach to development, and more recently, they have become part of the Rejuvenate India movement. It is under this plan that IFA chose to support them with 3 fellowships starting in 2005. Last December, Surekha and I went to see their work. We were joined on the trip, amongst others, by Yogesh and Suvarna Shastri and Manisha Mandkar. We trekked up the mountain to see some of their water harvesting work. This work has involved a variety of water harvesting techniques, including trenches, check dams, and ponds. A typical technique is creating ridges along the slope. Such ridges are made with stones that are found in abundance here. Ordinarily, the rainwater would race down these slopes, cutting land,
washing away soil and generally creating havoc. A series of ridges at strategic locations will slow the water down, thus allowing it to percolate and charge the surrounding ground, which then can be cultivated. In addition, the washed soil accumulates behind the ridges, creating chunks of fertile topsoil in this rocky landscape. A similar technique consists of a dabri, a square enclosure in a relatively flat area. Another way to charge groundwater is by digging trenches. While the depressions collect water, the ridges created by the excavated soil are used for growing useful plants. यहाँ का पानी जो आता है तो इसमें आके रुकता है क्या चीज़? ये बैठ है। क्या है कि अपने यहाँ ये पथरीली एरिया है। ठीक है। पथरीली एरिया की वजह से इसमें पौधे भी बहुत कम होते हैं, तो ये मिट्टी हम ऊपर करती है। ठीक है। मिट्टी ऊपर होने की वजह से कुछ जड़ अच्छे से हो जाता है, जिसमें हम बीजारोपण भी किए थे। अच्छा, नाम क्या बोलते हैं इसको? अरंडी। अरंडी। इसका ऑयल निकलता है। कौन सा है जेट्रो का? ये पूरी लाइन से अपने बहुत लगाए हैं। अच्छा, ये बेशरम जीत है, लेकिन अभी अब लगा रहे थे, थोड़ी टाइम लग रहा है इसको। हाँ। ये लग जाएगा तो फिर ये बहुत कटते, इससे कलम भी लगती है। एक पॉन्ड दिख रहा है, वो पहले साल बनाया था ये। बीच में जो है At the lower levels, their work has consisted of excavating ponds and digging wells. योगेश, ज़रा बताइए क्या प्रोसेस था इसको बनाने में? सबसे पहले इसमें यही कहना चाहिए कि गांव के ही लोगों ने इसको पहले चुना था। अच्छा। यहाँ पर पानी रहेगा 12 माह से। अच्छा। ये तो एक ऐसा ही वेस्ट पड़ा था। अच्छा, जैसे बाकी है आसपास। जैसे ये पड़ा है। ठीक है। और फिर इसको एक्सकेवेट किया गया। अच्छा। तो ये चारों तरफ से बांध के और ये पानी इसमें 12 माह से पानी है। अब यहाँ किल्लत नहीं है पानी की, जानवरों के लिए, निस्तार के लिए। और वो जो दिख रहा है सामने, वो बबूल के बीज डाले थे। अच्छा। इसके बाल के ऊपर धीरे धीरे वो भी पेड़ बन के इसमें छाया आ सकती है। 2 साल पहले बना। हाँ, ये 2 साल हो गए इसको। मछली भी है। हाँ, मछली भी है, इसलिए सांप गया, मेढक भी होंगे। पानी कैसे आता है? फिर बॉटम इसका बांधा हुआ नहीं है। पानी स्रोत है, ऊपर का पानी नहीं है, कुएं में ऊपर पानी नहीं है। अच्छा, स्रोत है नीचे। कब बनाया इसको? 2 वर्ष हो गए सर, बनाते बनाते थोड़ा आधी करके। सफाई का कुछ करना पड़ेगा, पेड़ है ना। सब्जी जब सिंचाई होगा तब पूरा से पानी यूज हो जाएगा, इस वजह से साफ नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अब सब्जी लगाएंगे इसको? सब्जी लगाती इसमें पूरा पानी निकल आएगा। By providing water for irrigation and also by recharging the surrounding groundwater, such development improves agricultural yield and allows other income-generating activities such as horticulture. Here, the villagers have planted fruit trees in the vicinity of a pond. ये सारी पहाड़ी पर प्लांटेशन है जी। और ये 8 से 10 लोगों के बीच में है उनका प्रोटेक्शन।
उनका प्रोटेक्शन है कि उनकी पर्सनल ओनरशिप? उनकी कुछ लोगों की है और कुछ लोगों ने अंडरस्टैंडिंग बनाया है। Project encourages such efforts, but their support is always conditioned on the villagers chipping in part of the cost. इसमें मटेरियल दिया है, अच्छा मटेरियल लेबर पूरा उसका है। और क्या नहीं, तुमको सहायता क्या क्या मिली है? पत्थर मिले सर, सीमेंट मिली है, हाँ। रेता मिली है, हाँ। और मिस्त्री मिला। उसमें टेक्निकल नो हाउ। अच्छा दूसरा ये जो पौधे हैं उसके लिए पॉलीथीन लगती है, अच्छा वो सपोर्ट देते हैं। अच्छा और बाकी सारी मेहनत उसको करनी है। इवन गड्ढे भी उसको खुद को एक्सकेवेट करने हैं। और पौधे जरूरत पड़े तो सीड्स दे सकते हैं। सीडलिंग्स नहीं, सीडलिंग्स नहीं, सीड्स। क्योंकि ये भी है कि नर्सरी भी उसी को ग्रो करना है। अगर बने बनाए लाते हैं तो उसमें भी वो एक प्रोसेस छूट जाती है। ठीक है। इतने वो 6-7 महीने वो दिल लगा के पौधे संभालता है, तो उसका एक अलग उसमें ओनिंग आती है। ठीक। एक बैंक का स्कीम है, फाइनेंस करते हैं, लेकिन वो उस किसान के ऑप्शन पे छोड़ देते हैं कि अगर वो उसको इंटरेस्ट है तो वो बैंक में अपना लोन के लिए फाइल कर सकता है। Personal involvement is a must for creating ownership. Also important is transparency. डिमार्केशन है, तो ये हर मेड पे डिमार्केशन मिलेगा। मुखिया का नाम, कि जैसे लंबाई कुल कितनी है, मेजरमेंट होती है। ठीक है। फिर उससे उसका क्यूबिक मीटर निकलता है, कितना काम हुआ। और जैसे प्रोजेक्ट फंड से पैसे जाते हैं तो इसमें 50% कंट्रीब्यूशन उस ओनर का है। अच्छा। और 50% वो प्रोजेक्ट से लेता है। प्रोजेक्ट्स। Exposure to improved farming techniques, such as vermiculture, is also part of the work, as are the efforts to promote planting of indigenous plants. यही होता है ना, खा लेते हैं ही होता है। कैसा लगता है टेस्ट? बहुत बढ़िया। बच का पौधा है और ये मस्तिष्क की बीमारी जो होती है, और ये दलदल में ही आता है, दलदल सूखी क्षेत्र में उसमें ही नहीं होता आता। जहाँ हैंडपंप है, पानी रहता है उसी जगह पे। क्या बोलते हैं इसको? वो तो अमरूद है, इससे खटाई खाए, और फिर ये गर्मी में ये धूप लग गया तो ठीक हो जाता है। The empowerment of women is an important part of this endeavor. Manisha has been involved in organizing women along self-help groups. ये जो हम सब महिलाएं हैं यहाँ पर, ये जो SHGs हैं उनका फेडरेशन है। अच्छा। इसमें 8 से 10 गांव की महिलाओं की सदस्यता है। वैसे 120 सदस्य हैं इसके। अच्छा। और यहाँ वो सदस्य आए हुए हैं जो वॉशिंग पाउडर का हम काम शुरू करने वाले हैं इन्हीं गाँव में। हम सब ने 100 रुपये इकट्ठे करके अपना ऐसे 1100 रुपये इकट्ठे हो गए हैं। 2000 रुपये की पूंजी हमारी अपनी होगी। 20 सदस्य चाहिए उसमें, तो 9 और जोड़ रहे हैं अभी इसमें। ठीक है। तो इस महीने से ये है कि यहीं पर वॉशिंग पाउडर बनाएंगे और यहीं लोकल मार्केट जो एक मंगलवार को यहाँ लगता है हफ्ते में एक दिन, उसमें 10 गांव के लोग आते हैं खरीदारी करने के लिए, तो वहाँ बेचेंगे। तो ये जो ट्रेनिंग होगी ये पूरी तरह से हम शुरू कर सकें, इतनी ज़्यादा उसमें मार्केटिंग, पैकिंग सब कुछ रहेगा। ठीक है। इसके पहले जो ट्रेनिंग अप्रैल में हुई थी यहाँ, वो इंट्रोडक्टरी थी। 3-4 चीज़ें उन्होंने सिखाई थी कि आप देख लो कितना सरल तरीके से ये हो सकता है, आपके बस की बात है। तो उससे थोड़ी इच्छा जागी लोगों की, क्योंकि मोमबत्ती बनाना सिखाया, वॉशिंग पाउडर बनाना सिखाया, अमृत धारा एक ऐसी दवा होती है जो किसी वो बनाना सिखाया। तो अब हम लोग खासतौर से ये ग्रुप हमारा अपनी पूंजी से ही, किसी से कुछ लेंगे नहीं, अपनी ही पूंजी से हम शुरू करेंगे। इसके बाद वैसे हम लोगों ने तेल घानी और आटा चक्की और प्याज का भी हम लोगों ने ऑनियन ड्राइंग का भी सोचा है आगे चलकर बड़े उसमें, लेकिन सबसे छोटे से शुरू करेंगे ताकि हमारी समझदारी बनती जाए आपस में। ये जो चीज़ें बनाएंगे ये खुद ही इस्तेमाल कर पाएंगे कि बाहर भी मार्केट में बेचेंगे? कम से कम 10 गांव के लोग यहाँ। एक गांव में 150 से 200 लोग। 150 से 200, तो कम से कम 2000 लोगों को कवर करती है। अच्छा।
यहाँ जो बाजार है उसमें वो सारी चीजें आती है जो शहर में नहीं बिकती या बेकार है सारी, वो ले आते हैं ऊपर चढ़ाकर और यहाँ बड़ी आसानी से निकल जाते हैं। आजकल क्या है, एमएनसीज ने रूरल मार्केट को टारगेट किया है, तो वो 1-1 रुपए में भी वो ऋण और सब अपने को मिल जाता है यहाँ पे। तो कोई भी चीज आजकल, मतलब बिस्किट भी लेंगे तो 1 रुपए का पार्ले का पैक आपको मिल जाएगा, 1 रुपए का ऋण मिलेगा, 1 रुपए का सब मिलेगा। हम लोगों का ये उद्देश्य है कम से कम सखी समिति का सबका, हमारी जो जरूरत की चीजें हैं कितना हम उसको अच्छे से अच्छा क्वालिटी का मसाले यहाँ से जो खरीदते हैं खुले, वो बिल्कुल सबको पता है कि वो हम बस केवल नाम मात्र की हल्दी खरीदते हैं। जैसे तेल पिराने के लिए अपन जहाँ से नीचे से आए हैं उन नीचे के गाँव में जाना होता है, इतना ये पहाड़ उतर कर जाते हैं, उसके लिए कभी कभी रात में भी रुकना पड़ता है वहीं पर चक्की में, क्योंकि वहाँ बिजली हुई तो ठीक, नहीं तो लाइन इनका नंबर आया कि नहीं आया। तो और केवल यही गांव नहीं बल्कि जो यहाँ से 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर के गांव है वो भी वहाँ नीचे जाके तेल निकलवाते हैं। Gaining women's cooperation also means dealing with their everyday problems. The issue of men's alcoholism, for example. अपने गांव से सुनो, अपने गांव से जब महुआ आना बंद कर दो, अपने गांव में छाली आना बंद कर दो, अपने गांव में गांजा आना बंद कर दो, आदमी भी ठीक हो जाएंगे, लड़के भी ठीक हो जाएंगे। पकाता कौन है? घर घर पक रहे नाय करने रे। और हमारे घर में हंडी कौन चढ़ाता है? नाय का आके हमारे घर की हंडी कौन चढ़ाता है? हमें चढ़ा लेते हैं हंडी और नाय को लोग। एक तरफ तो हम हंडी चढ़ाते हैं, दूसरी तरफ हम कहते हैं उसको ठीक कर दो, हंडी चढ़ाते रहो, अपने आप उसका असर वही है। आम की गुठली डालोगे तो आम मिलेगा, दारू की भट्टी चढ़ाओगे तो दारू के बाद जो होता है वो अब मिलेगा। दारू की भट्टी बनाना बंद कर दो, सब कहलाने लगेगी, कहलाने लगेगी। तो अपना कड़ा मन कर लो, सोच लो कि हम साफ काम कर सकते हैं कि नहीं। बाहर जाएंगे तो आपस में काम करेंगे, तो घर में रहेंगे। Manisha further explains some unique features of this group. खुद अधिकारी लोग रखते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा है कि हमारे यहाँ खुद कार्यकर्ता जिसका है वो खुद रखता है। इन लोगों के सबके बहुत अच्छा है, इनको इतना अच्छा आ गया, एक दूसरे को सिखा भी लेते हैं ये। What about microcredit? 60,000 रुपए निकाला तो उसको कितने 6 लोगों ने बांटा, 8 लोगों ने लिया है। तो वो पशुओं का धंधा वो लोग अच्छा करते हैं, बाहर से पशु खरीद के लाना फिर इस इलाके में बेचना। तो अपना पहले जमा करते हैं ये, जब इनकी ग्रेडिंग होती है इनकी समूह में, जैसे रिकॉर्ड कीपिंग खुद का है, निर्णय सारे सबके मिलकर होते हैं, कितने लोग पढ़े हुए हैं, बैठक नियमित होती है कि नहीं, इनके अपना हमारा किसी के भी ग्रुप में हम लोगों का ऐसा हम इनकी बैठक नहीं लेते जाके अपने आप। लेकिन इनकी ग्रेडिंग हुई, बैंक वालों ने सीधे इनकी ग्रेडिंग की थी, उसमें इनको सिलेक्ट किया, बैंक ने डायरेक्ट लोन दिया। ये कितना लेते हैं ब्याज, वापसी में कितना ले रहे हैं? 12 8.5। और वैसे जो अपनी बचत होती है उसमें 4 या 4.5 देते हैं, 4.5 देते हैं। इसमें इतना एक फायदा है कि इनको 25% उसमें अनुदान है। मतलब 1.5 लाख जो दिया है उसमें से इनको 25% नहीं रिटर्न करना है। लेकिन शुरू में व्यापार पूरा होगा, बाद में फिर वो 25% इनको दे देंगे, इनके खाते में डालेगा, इनके खाते में। इसमें से जैसे बिंदु भाई इनको मिठाई, अपन ने यहाँ छोटे अपन ने यहाँ के मार्केट के हिसाब से बहुत सारी ट्रेनिंग की, मिठाई और नमकीन बनाने का हमने सीखा था। ये अपने खुद ही मंगलवार बाजार के हिसाब से बना लेती है कुछ चीज़ें और बेच लेती है, तो एक दिन में 200-250 रुपये इनका हो जाता है। ये लमिया बाई है, ये इनके पति वाटरशेड कमेटी के अध्यक्ष हैं। जैसे ये है शांति बाई ना, श्याम बाई, इनके पति काशीराम है। तो ये दोनों पति पत्नी इतने मेहनती हैं, इनका बहुत, किसी साल भैंस खरीद लेते हैं कमाई से, किसी साल डीजल इंजन खरीद लिया इनने, बहुत मेहनत। इन्होंने वाटरशेड से अपन ने इस तरह से सहयोग से कुएं बनाए थे, इनने परिवार ने बनाया। तो इनके पति भी मानसिक है, तो जागरूक किसान, नर्सरी भी करते हैं, सब्जी भी लगाते हैं, प्याज का भी लगाया, नर्सरी सब कुछ किया। अलग अलग गांव के लोग इनको ले जाते हैं। धीरे धीरे ये सखियां ही काम बढ़ा जाएंगी, कई गाँव में फैल जाएगा। बस फिर अपनी बात हो गई है। मनीष लिखा है, एक मात्रा और लगा।
ये इस फेडरेशन की सखी समिति की सचिव हैं लमिया बाई। और इन्होंने इलेक्शन, हाँ, सरपंच का चुनाव इन्होंने तरंग ग्राम पंचायत का लड़ा था, 3 वोट से ये हारी। तो अध्यक्ष, हाँ, अध्यक्ष सरपंच भी महिलाएं हैं। हाँ, महिला सरपंच है। अच्छा अच्छा। और वो सखी समिति की अध्यक्ष भी है अपनी। The women clearly seem engaged, and from the stories we heard, they have certainly been empowered by their association with Sahajivan. As another example of their holistic approach to development, Sahajivan have tried to introduce progressive ideas in the local government school system. One of these is exposing the children to horticulture. जैसे तुलसी हर घर में होनी चाहिए। तुलसी का पौधा आयुर्वेदिक के दृष्टि से भी और स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा केला है, और केला के अलावा और फूलों के पौधे हैं, बेला है और गुड़हल है। इस तरह के पौधे यहाँ पर लगाए हैं। तो थोड़ा सा सब्जी के भी बगीचे यहाँ पर तैयार करने की कोशिश की है। इस बार इसीलिए डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया है कि होता है। तो यहाँ पे क्या आलू और क्या? आलू और मूली यहाँ पे लगाए। आलू और मूली। और उधर पे लहसुन। We happened to reach the village Pyari on the Children's Day and watched Sahajivan members engage these young students in highly creative ways. भारत माता की जय। तो बच्चों, हम लोग यहाँ पे क्यों इकट्ठे हुए आज? बच्चों का दिन है आज। कौन सा दिन है? शिक्षक दिवस मनाया था कि नहीं अपन ने? मनाया था ना। कौन सा दिन? 5 सितंबर को गुरु जी की पूजा की थी, फिर गुरु जी के सामने गीत गाया था ना। तो आज बाल दिवस है, और उनका नाम सुना है? जवाहरलाल नेहरू जी का, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। कितने लोगों ने सुना है? हाथ उठाओ। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का कितने लोगों ने नाम सुना है? कोई भी नहीं जानते। ठीक है, अच्छी बात है। आज अपन देखेंगे ना कैसे दिखते थे, फिर कहाँ के रहने वाले थे, सब अपन सीखेंगे। सबसे पहले एक गीत गाएंगे, सब लोग को दोहराना है, ठीक है ना? तैयार? हाँ, ठीक है। युग निर्माता हम बच्चे, युग निर्माता हम बच्चे। It'll be easy to mistake Sahajivan for a typical NGO if one limited one's focus to the work described so far. But although they are totally committed to the economic and social upliftment of this area, behind their work lies an inspiring force of idealism and a stubborn faith in the holistic family values of living in harmony with each other, with the nature, and with oneself. Back in their modest rented house cum office in Shahdol, we learned more about this from Manisha's husband Giridhar. इसके लिए 9 लोगों ने मिलकर शुरू किया था इसको, और एक बुजुर्ग प्रोफेसर GD अग्रवाल से 10 लोगों का एक था। वो IIT कानपुर में प्रोफेसर रहे और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के फाउंडर मेंबर सेक्रेटरी रहे, विश्व स्तर के पर्यावरणविद हैं। तो इन 10 लोगों में 4 दंपत्ति हैं, 4 जोड़े हैं। एक बहन है, वो कंप्यूटर की नौकरी करती है यूनिवर्सिटी में चित्रकूट में। तो सब लोगों को अपने अपने हिसाब से लग रहा था कि हमें अपने संतोष के लिए जीवन जीना है। ये सब लोग संयोग था कि चित्रकूट में मिले, तो सब लोगों ने मिलकर करना चाहिए, ऐसा एक पॉइंट रेज हुआ। वो भी एक सज्जन बाहर से आए थे, मिस्टर आनंद बापट। तो गांधीयन फिलॉसफी पर वो काम करते हैं, वर्धा में उनका हेडक्वार्टर है। पिछले 10 वर्षों से लेके 4 वर्षों का ये सब पीरियड था कि सब लोग कम से कम 4 वर्ष एक दूसरे से पीरियड मिले थे या 10 वर्ष से परिचित थे। तो इस दौरान सब लोगों ने एक दूसरे को पहचान लिया था। तो ये था कि हम आपस में मिलकर एक अच्छी चीज़ कर सकते हैं, जिसमें ऊर्जा एक रेजोनेंस के साथ निकलेगी, और एक सुरक्षा का भी भाव आता है कि ग्रुप में काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्या करना है ये 1999 से 99 से धीरे धीरे सोचते रहे।
बट नेचुरली ऐसा काम करने के लिए संस्था को एक लीगल वो देना ज़रूरी होता है, तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत इसको रजिस्टर किया। कार्य क्षेत्र तो वैसे इसका पूरा देश है, लेकिन वर्तमान में हम मध्य प्रदेश के इस छोटे से पॉकेट में काम कर रहे हैं। वैसे भी अपना था कि किसी एक पॉकेट को सेलेक्ट करके उस पर ठीक प्रकार से काम किया जाए, बजाय इसके कि एनर्जी को यहाँ वहाँ अलग अलग जगहों में लगाने की बजाय क्वालिटी वर्क हो। और वर्क हमारा मेन हमने जो तय किया था कि एक ग्रुप लिविंग के मॉडल को हमें जी कर दिखाना है, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत समाज में यही दिख रही थी, सगे भाई साथ में रहना पसंद नहीं करते हैं। तो हम ऐसा कुछ मॉडल निकाले जिसमें पर्यावरण की बात को लेके, यानी इको फ्रेंडली लाइफ स्टाइल वाली बात हो उसमें, और साथ में रहे। तो साथ में रहे तो फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि हमारी लाइवलीहुड भी उसमें से निकले, उसका भी तरीका ऐसा हो कि जो इन्वायरमेंट को फ्रेंड हो, हमारे जो जीवन मूल्य है, जो वैल्यूज़ है, उसको भी इस लाइफ स्टाइल में से लिया जाए और ओवरऑल हम कंट्रीब्यूट करें सोसाइटी के लिए, हमारे जीवन उसमें से संतोष प्राप्त करें। सबके मन में यह था कि अपने को एक नई जगह पे जाके शुरुआत करनी है, तो बट नेचुरली हमारे जो जॉब है, जो असाइनमेंट्स है, उससे विड्रॉ करके नई जगह पे जाना होगा। कहाँ जाना, तो उसके लिए भी अलग अलग जगहों से अच्छे प्रस्ताव आ रहे थे, महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश के 2-3 जगहों से। एक बार ये भी बन रहा था कि ऐसी जगह पे हम जहाँ जाएँ, कोई एक बड़ी एनजीओ काम ना करती हो, हमारे लिए काम करने की संभावना ज़्यादा हो। तो शहडोल आना एक संयोग बना। हमारे प्रोफेसर टी करुणाकरन का मैंने नाम बताया था, तो यहाँ पंकज अग्रवाल जी पहले कलेक्टर हुआ करते थे, तो उन्होंने हमारे इस पूरे ग्रुप और इस भावना का बहुत सम्मान किया और उन्होंने यहाँ आके हमने काम शुरू किया है। तो वाटरशेड प्रोजेक्ट ये हमने एक्सेप्ट किया गवर्नमेंट का, और पुष्पराजगढ़ ब्लॉक के 3 गाँव में काम करना शुरू किया। प्रोजेक्ट जब एक्सेप्ट किया था उस समय से उसको 5 वर्ष में पूरा करना था। अभी ये जो पीरियड है इसके समाप्ति का दौर है। तो शुरुआत में राजेंद्र ग्राम ब्लॉक हेडक्वार्टर है पुष्पराजगढ़ ब्लॉक का, वहाँ पर हेडक्वार्टर बनाया था, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो शहडोल को लेकर ही चलती थी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और तमाम चीज़ें। तो फिर हमने अपना हेडक्वार्टर शहडोल में लाए 4 साल पहले। गतिविधियाँ हमारी उन गाँव में चलती हैं। ये हुआ था कि ये जितने लोग हैं ये इकट्ठे नहीं जाएं, फेजेस में जाएं। तो योगेश जी और सुवर्णा ये दंपत्ति, इन्होंने पहले बोला कि हम पहले जाएंगे, एक्सेप्ट किया ये। फिर वहाँ से वाइंड अप करने की जो प्रोसेस है उसमें भी सब लोगों को लगना था। तो मनीषा फिर 1.5 साल के बाद यहाँ ज्वाइन की, फिर पिछले साल में मैंने यहाँ ज्वाइन किया। तो यहाँ पर अभी 2 दंपत्ति फुल टाइमर के रूप में यहाँ काम कर रहे हैं। अगले दंपत्ति भी 1 साल में यहाँ ज्वाइन करेंगे, ऐसी उनकी योजना है। हम जो भी कार्यक्रम करते हैं फिजिकली हम लोग यहाँ हैं, लेकिन पूरा ग्रुप है, ऐसा एक फीलिंग उसमें से निकल के आ रही है। लोग वहाँ होने के बावजूद भी यहाँ हैं। हाँ, फाइनेंशियल 3 महीने में तो हमारी जो मीटिंग होती है उसमें सब लोग आते ही हैं। मतलब सहजीवन जो हमने तय किया था, तो सहजीवन ये केवल एक संस्था नहीं है, मतलब संस्था एक उसका पार्ट है, हम इसको ऐसे ही मानते हैं, और इट्स लाइफस्टाइल, हम इसको जीवन पद्धति ही मानते हैं। और कुछ प्रोजेक्ट्स हैं या कुछ काम है, उनके लिए जो एक संस्था का जो एक लीगल स्टेटस होना चाहिए उस ग्रुप का, इसके लिए एक सोसाइटी है लेकिन मेन अपना ये है कि हम लोगों को एक साथ रहना, एक साथ काम करना। जैसे वाटरशेड प्रोजेक्ट की बात आई थी, तो वाटरशेड प्रोजेक्ट था इसलिए हमने उसको स्वीकारा, ऐसा नहीं है। जहाँ पे हम लोग गए, लोगों से बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि पानी हमारी मेन प्रॉब्लम है। उसी हिसाब से लगा कि नहीं ठीक है, प्रोजेक्ट है तो उसको लेकर के काम शुरू कर सकते हैं। तो अभी गिरधर जी है, गिरधर माथनकर, वो मतलब मध्य प्रदेश के रहने वाले, उन्होंने PhD की है फिजिक्स में, और चित्रकूट यूनिवर्सिटी में फिजिक्स डिपार्टमेंट में लेक्चरर रहे। इसी साल उनका फॉर्मल रेजिग्नेशन हुआ है। मनीषा जी ने होम साइंस से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, और फूड टेक्नोलॉजी मतलब फूड एंड न्यूट्रिशन उनका सब्जेक्ट रहा है।
उनका भी अलग अलग जगह, जैसे चित्रकूट में भी उन्होंने काम किया, यूनिवर्सिटी में भी थी वो, वहाँ से उन्होंने रिजाइन किया। फिर जो संस्था है चित्रकूट में, दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहाँ पे एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का एक वहाँ पे प्रोजेक्ट था। कुछ समय तक पूरे उस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी भी उनके ऊपर थी। और फिर बाद में उसका जो एक बेकरी यूनिट था वो उसको वो संभालती थी। और फिर योगेश जी हैं, तो योगेश जी महाराष्ट्र के रहने वाले, और पढ़ाई लिखाई वहीं हुई, इंजीनियरिंग किया मैकेनिकल ब्रांच में। कॉर्पोरेट सेक्टर में भी रहे वो, लगभग 4 या 5 साल रहे, और उसके बाद फिर वहाँ से रिज़ाइन करके फिर इसमें आ गए। और मैं सुवर्णा, मेरा भी वैसे प्रोफेशनल बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का ही है, इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने किया ग्रेजुएशन, और कुछ समय तक मैं भी रही अलग अलग शहरों में, अलग अलग कंपनियों के साथ में। फिर मैंने भी एक छोड़ दिया, फिर पुणे में एक संस्था है उनके साथ में मैं जुड़ी रही साल भर, और उसके बाद फिर जो एक अपॉर्चुनिटी हमको मिली, हम दोनों को साथ में काम करने के लिए जो मौका मिला, उसके लिए हम लोग चित्रकूट आए, और फिर वहाँ से ये ग्रुप बना। तो ये हम 4 लोग हो गए। एक और है राजेश सिन्हा, जो हमको कल ज्वाइन होंगे, कल सुबह यहाँ आएंगे। वो बेसिकली बिहार के रहने वाले हैं, और उन्होंने भागलपुर से सिविल ब्रांच में इंजीनियरिंग किया है। और उनका तो शुरू से ये रहा था कि मुझे तो सिविल में मैं नौकरी करना ही नहीं है। वो जैसे ही पास आउट हुए तो उन्होंने एक संस्था को ही ज्वाइन कर लिया था। 5-6 साल तक विज्ञान शिक्षा केंद्र बांदा में है, उनके साथ में काम किया उन्होंने। अगले साल उनका यहाँ आने का प्लान है। उनकी पत्नी डॉक्टर वंदना सिन्हा, उन्होंने सोशल वर्क में PhD किया है। वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है, और उन्होंने जर्नलिज्म भी किया, बाकी भी और बहुत सारी चीज़ें की हैं। तो वो वहाँ यूनिवर्सिटी में लेक्चरर है। और उनके 2 बच्चे हैं, गिरधर जी और मनीषा जी का राघव बेटा है। और एक और कपल है संजय देव और दीपा देव, वो दिल्ली में रहते हैं। संजय जी मूलतः पत्रकार हैं, नवभारत टाइम्स के साथ लखनऊ में 9 साल तक उन्होंने काम किया। फिर वो भी चित्रकूट में थे, दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ में भी उन्होंने 7-8 साल काम किया। और फिर अभी वो अपने भाई के साथ में दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में खास करके काम करते हैं। और इस तरह के जो पूरे देश भर में एफर्ट्स होते हैं डेवलपमेंट के, उनसे रिलेटेड लोग और उनसे रिलेटेड संस्थाएं, उनके लिए डॉक्यूमेंट्रीज बनाना, या फिर उनके लिए कुछ ऐसे इंटरव्यूज वगैरह लेकर के उसको टीवी से टेलीकास्ट करना। राहुल देव उनके भाई है। राहुल देव एक माने हुए पत्रकार माने जाते हैं अपने देश में, तो वो दोनों मिल करके इसको करते हैं। उनकी पत्नी है डॉक्टर दीपा देव, उन्होंने भी विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में PhD किया। वो भी चित्रकूट यूनिवर्सिटी में अभी भी लेक्चरर है। उनकी 2 बेटियां हैं। तो इस तरह से ये 4 कपल्स। और शैला देशमुख एक और है जो सिंगल लेडी हमने कहा, वो महाराष्ट्र की रहने वाली। फिर उन्होंने वहाँ से कंप्यूटर्स में वो आ गई, तो अभी चित्रकूट यूनिवर्सिटी में ही पिछले 15 साल से। वर्ष में 2 बार ऐसा होता है कि कम से कम 4-4, 5-5, 6-6 दिन के लिए सब लोग एक साथ में रहने का ये कंपलसरी रहता है। मीटिंग वगैरह के तो जोड़ लेते हैं थोड़ा उसके साथ, लेकिन 5-6 दिन एक साथ में रहना बच्चों के साथ, तो वो भी हमारा एक्सपेरिमेंट है। और जैसे सुवर्णा ने बताया कि सहजीवन एक संस्था कम एक लाइफ स्टाइल, दूसरा सहजीवन एक प्रवास भी है, एक सब लोग मिलके हम उसको कर रहे हैं। तो उसमें सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, नई चीज़ें दिखती हैं, उस हिसाब से एक साथ में उस दिशा में बढ़ते हैं। और मतलब ये केवल पति पत्नी साथ में रह रहे हैं और 2-4 कपल मिलके साथ रह रहे हैं, इसलिए सहजीवन नहीं है। सहजीवन को उस समय हमने जो डिफाइन किया था वो सह अस्तित्व से जीवन, कोएग्जिस्टेंस है। तो कोएग्जिस्टेंस सबका है, मतलब नेचर के साथ में भी है, नेचर में जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनके साथ में भी है, हम सबका आपस में है, हम सबके पेरेंट्स हैं, हम सबके रिलेटिव्स हैं, हम सबके फ्रेंड्स हैं। तो इसमें मतलब नेचर के साथ में, अपने पेरेंट्स के साथ में, रिलेटिव्स के साथ में, जैसे आपने देखा पिताजी हमारे आए हैं तो वो हर साल आते हैं यहाँ पे, माता पिता रहते हैं, इनके माता पिता आए हैं, मनीषा के माता पिता आते थे, रहते थे। हम लोग एक दूसरे के यहाँ जब कोई त्योहार वगैरह होता है उसमें जाते हैं, संबंधों में जीना। अब उसमें जो हम अभी दावा करते हैं कि हम नेचर के साथ रहते हैं, अभी तो हम बिल्कुल ही नेचर के साथ नहीं रहते, लेकिन हमारा ये प्रयास है। और अभी हम पिछले 4-5 साल से प्रयास कर ही रहे हैं कि हम एक प्लॉट लेंगे, मतलब और वहीं पे हम रहेंगे, वहीं पे खेती करेंगे। हमारा जो अपना खुद का जो
सस्टेनेंस है वो हमारा खाना पीना कम से कम हमारी खेती से आए, फल है, सब्जियां हैं, दूध है, ये सारी चीजें। An important aspect of their operations is that they should have independent sources of income and should not have to depend on funding organizations. As an example, Giridhar, a PhD in physics, runs an informal teaching outfit in Shahdol. तो यहाँ आके सब लोग फुल टाइम प्रोजेक्ट में लगे वगैरह, ये हमारी सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के हिसाब से बड़ा डिस्टॉर्शन क्रिएट करता है। तो ऐसा है कि इनकम जनरेशन की एक्टिविटी ये एक हो सकते हैं, लेकिन इसमें से भी सेवा ही ज़्यादा होती है। हमारे पास एवरेज और बिलो एवरेज ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं, 25 स्टूडेंट्स। अब ये नंबर बढ़ते जाती हैं और इस नंबर में 9th से लेके BSc फाइनल ईयर तक के स्टूडेंट्स आते हैं। The group is slowly building an eclectic association of informed and inspired people from various walks of life who contribute in a variety of ways. मिसेस अनघा आगाशे हैं और बहुत अच्छी टीचर है और उसके बाद में सेंट्रल स्कूल में पढ़ाती थी। उसके बाद फिर इन्होंने वो सब छोड़कर घर में ही अपना काम शुरू किया। मैं संतोष शुक्ला, ऐसे कह सकते हैं छोटे छोटे कुछ काम कर रहा हूँ। बेसिकली मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से संबंध है, तो उस पर कुछ लिखा जाए तो कुछ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अभय हूँ, यहाँ पेशे से गर्ल्स कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ केमिस्ट्री में। बहुत ही एक्टिव व्यक्ति हैं और समाज में जहाँ जहाँ भी इनकी ज़रूरत होती है वहाँ वहाँ पहुँच जाते हैं। गवर्नमेंट के एम्प्लॉय ज़रूर है, लेकिन सोशल एक्टिविस्ट ज़्यादा हैं और चीज़ों को मुकाम तक पहुँचाने वाली पर्सनालिटी है। हमारे बीच में एक बड़े भाई ऐसा इनका होता है। सरकार में काम करना, फिर सरकार के अंदर इस तरह की गुंजाइश पैदा करना कि सरकार मतलब डिलीवरी सिस्टम को एटलीस्ट कैसे स्ट्रेंथन कर सकती है ना। नमस्ते। ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस हो, कम पैसे लगे और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आए, जिस तरह की बात सोचते रहे। फिर कुछ सालों के बाद हमको ये लगा कि वहाँ पे हमारे को एडमिनिस्ट्रेटिव और इस तरह की फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं है। फिर हम लोगों ने भी अपना एक संस्थान बना लिया, अलग से संस्था बनाई लोक शक्ति, वो छत्तीसगढ़ में काफ़ी बड़े पैमाने पर काम कर रही है। 8-10 साल के काम के बाद में फिर वो लगा कि हम कर क्या रहे हैं आखिरकार। सरकार से लोगों की डिपेंडेंसी कम हुई तो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंडेंसी हो जाएगी, तो फिर क्या मतलब होगा, तो इम्पावर कहाँ हुए लोग। तो वो फिर उसमें एक वो विड्रॉवल अप्रोच से काम करना शुरू किया कि अगर हम कहीं पे काम करते हैं तो हमारे लिए हमारी सफलता का मापदंड ये होगा कि हम कितना जल्दी वहाँ से विड्रॉ कर जाते हैं, लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए स्वयं आगे आ जाते हैं। तो वो कुछ वर्षों तक करते रहा। फिर उसके बाद में एक बार ये टेस्ट इस तरह का डेवलप हुआ, योग है, मेडिटेशन है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है, इस तरह के HRD पे जो ज़्यादा काम है वो कुछ उनके ऊपर फोकस कर रहा था। मौजूदा हाल में ये जैसे ये सहजीवन के साथी में है, ये सदगुरु के जो साथी है यहाँ, इस तरह की जो संस्थाएं जो काम कर रही हैं कुछ करना चाहती हैं, तो वो क्रिटिकली अपने आप को देख सकें, एग्जामिन कर सकें, अपने उस तजुर्बे के हिसाब से उनको कन्फ्रंट करता हूँ, एंकर करता हूँ, कन्फ्रंट करता हूँ, एंकर करता हूँ। जरा देखो जो मतलब डायरेक्शन बहुत क्लियर है कि नहीं, जहाँ सोच रहे हो जाने के लिए वहीं जा रहे हो या कुछ और जा रहे हो। इस तरह का अपना रोल मैंने अभी बना रखा, वो काम करता हूँ। ये बहुत साफ बात समझ में आ गई है कि कहीं किसी और दूसरे के पैसे से, किसी और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की मदद से हम सशक्त या सेल्फ रिलायंट या एम्पावर होने का मामला बहुत बात समझ में नहीं आती है। तो जीवन विद्या के माध्यम से एक ग्राम स्वराज का कार्यक्रम डिंडोरी जिले में हम शुरू करने जा रहे हैं। तो वहाँ पे उन गांव वालों के साथ में समझ के आधार पर कैसे हम अपने आप को विकसित कर सकते हैं, ये काम शुरू कर रहे हैं। तो वहाँ पे खास बात ये है कि हम मतलब कहीं से अपने रिसोर्सेज के अलावा बाकी और कहीं से कुछ भी हम मदद नहीं लेंगे। ये काम अभी ख्याल में है, जिसको लेकर के मुझे आगे काम करना है। आने वाले 4-5 साल में यही काम करना चाहिए। कैसे हम सेल्फ गवर्नेंस की बात को अपनी आंखों से देख सकते हैं, उसका तरीका क्या होगा। तो वो चूँकि प्रयोग हिंदुस्तान में नहीं हुआ, गांधी ने किया, विनोबा ने किया, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं किसी दूसरी तरह से वो किन्हीं दूसरे के हाथों में सारा मामला था, कहीं और से हम मतलब गवर्न हो जाते थे, बात सेल्फ गवर्नेंस की बात करते थे। तो ये इस तरह के काम कर रहे हैं जहाँ पर समग्रता की एक समझ है, हमारा अपना एक दर्शन है, हमारी इकोनॉमिक्स है, हमारा सोशियोलॉजी है, हमारा अपना पॉलिटिकल सिस्टम है, वो किस तरह से होगा। तो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ में वहाँ पे ये काम किया जाना है। कोई सेक्टोरियल या इस तरह का
अप्रोच नहीं है कि सिर्फ ये काम करेंगे, वाटरशेड का काम करेंगे और ग्राम स्वराज स्थापित हो जाएगा। मतलब हम कोई पैरेलल सेटअप नहीं है और ना ही उसके पैरेलल कोई ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर रहे हैं। जो एग्जिस्टिंग सेटअप है उन्हीं के अंदर समझ के आधार पे, क्योंकि सरकार की वही घोषित नीति है, काम अघोषित नीतियों पे करती है। और उनसे अगर ये पूछते हैं कि भाई चाहते हो ना कि हर गरीब को रोटी मिलना चाहिए, हाँ तो सही है, तो ठीक है, ये काम हम इस तरह से कर रहे हैं और ये तरीका होगा जिस तरह से ये हो सकता है। Back in Pyari, we tried to get a better perspective on the impact of this project. CCT 5000 मीटर बन चुका है, ट्रेंच 2943 मीटर बन चुके हैं, गली फ्लैग 1 बना है, बोल्डर चेक 22 बन चुके हैं, मेड़बंदी 2943 मीटर बन चुके हैं। It was obvious that a lot of good work had been done. But was there another side to it? Had they encountered any difficulties? As expected, there had been disappointments. This dam, for example, failed and was washed away last year. There were other sore spots, reminders of the fact that much work still needed to be done. लाइन भी दिख रही होंगी, दैट इज आवर ट्रीटमेंट। ऊपर सबसे ऊपर ये पूरा उसके ऊपर। अभी जो कंसर्न है वो कंसर्न देखिएगा, कितनी जगह आपको क्रॉप या कुछ पौधे दिखाई देते हैं। दैट इज ओवर। अभी तो 3 साल तो बने हैं, बात नहीं, अभी पता लगेगा। सही बात है। जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन था। किनका जन्मदिन था? हाँ, अच्छा, इन्होंने क्या किया हमारे देश के लिए? आज़ादी के लिए काम किया था, है ना? हाँ, कल फिर सारे लोग स्कूल आएंगे कि नहीं आएंगे? अरे क्यों नहीं आओगे भैया? अच्छा, छुट्टी तो भी आएंगे। कितने लोग आओगे छुट्टी हो तो? बाकी सीखना है। The fact that so many of these children did come today, and that at least a few are willing to come again on their off day, means that some inroads are being made. पहले लोगों को यहाँ पानी बहुत कम मात्रा में मिलता रहा, गर्मी के समय बिल्कुल पानी नहीं मिलता रहा, लेकिन ये बंदा बन गया है तो पूरे गर्मी में पर्याप्त मात्रा में। ये बंदा वो जो सामने दिख रहा है जानवर। और ये कब से शुरू किया आपने यहाँ पे? अब ये जो हरियाली का फोकस लास्ट 2 ईयर्स से। लास्ट 2 ईयर्स। और वो तीनों विलेजेस में? वो तीनों विलेजेस में। अब उसका इम्पैक्ट जो है नज़दीक के 4-5 विलेजेस पे जा रहा है। और ये एक विलेज में 120 फैमिली के करीब आपने बताया अंदाज़? हाँ, अंदाज़ 100 से 60, हाँ बराबर 110-120। The dignified prosperity of this home, belonging to one of the families working with Sahajivan, speaks very positively of the impact of this project. 3 वोट से मिट्टी का बना है। हाँ, ये भी स्टोरेज है, इसमें भी ध्यान रखते हैं ना। हाँ। अच्छा, ये भी? हाँ, अलग अलग डिजाइन। ये बड़ा है। हाँ। उसकी बहुत अच्छी खीर बनती है मिट्टी की। ये मिट्टी की एक वो रहता है, जतो बोलते हैं, तो उसे दराई करते हैं। अच्छा, हाँ, केवल ऊपर का छिलका निकालने के लिए। पत्थर वाला होता है, उससे डरते हैं। हाँ, पत्थर वाले से तो एकदम पिस जाएगा। उल्टा नहीं। हाँ, या मेरे हाथ चली ना, या मेरे मन तो थक जाएगा। ये मिट्टी का बनाया हुआ है। हाँ, ये छिलका निकालने। हाँ ठीक, जो मेरे हाथ चला है। फिर गाना भी गाना होता है। जो ड्राई सेल होते हैं, वो जो यूज होते हैं, उनमें कार्बन होता है। हाँ, कार्बन होता है, तो उसको मतलब खोल के पूरा उसका ऊपर का कवर, वो अंदर का जो रॉड है उसको कूटेंगे, पाउडर बनाएंगे, पानी में मिक्स करके कलर के रूप में यूज करेंगे उसका। इनोवेशन। As we left the village,
Yogesh showed us the farmer who was the lone person who had believed in them and had welcomed them to the area in the beginning when the rest were skeptical, if not outright hostile. Today, we found the people to be welcoming and highly receptive. They certainly have come a long way. We left the place highly impressed by the scope of their work. But what is truly moving is their idealism and commitment to certain values. On the surface, it may appear that they are swimming against the current. But on a deeper reflection, one can conclude that their beliefs are really rooted in the Indian ethos, a value system that, in spite of all the destructive pseudo-modernism, remains as vital and as relevant as ever. We at IFA are looking forward to a long association with this inspiring group of people. अरे अंगठी कोड़ी कोड़ी से मियाँ लगायो हरी लारे जानवर से, अरे जानवर से मोर पोती रामायण में फूलवर से। अंगठी कोड़ी कोड़ी से मियाँ लगायो हरी लेवा जानवर से, जानवर से मोर पोती रामायण में फूल बरसे। यदि जानवर से मोर पोती रामायण में फूल बरसे, जानवर से मोर पोती रामायण में फूल बरसे। यदि जानवर से मोर पोती रामायण में फूल बरसे। Yeah.
तारे हरे नाना तारे नाना अवतारे हरे नाना रे नान कानिता सुमरो धरतीन का ऐसे ऐसे कानिता सुमरो गुरु आपन जब चौथे बरावन ले तारे हरे नाना तारे नाना आए भाई तारे हरे नाना तारे नाना और
कल की आशा हम बच्चे, खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी जब हम नाचे गाएंगे, जब हम नाचे गाएंगे, हमें बधाई देने को फिर, हमें बधाई देने को फिर, परियों के दल आएंगे, परियों के दल आएंगे, अरे धूम धमाका हम बच्चे, नाचे ताता थैया बच्चे, नाचे ताता थैया बच्चे, निर्माता हम बच्चे, के आशा हम बच्चे, निर्माता हम चांद सितारों से तो अपना जन्म जन्म का नाता है, खीर बतासा हम बच्चे, अरे खीर बतासा हम बच्चे, युग निर्माता हम बच्चे, कल की आशा हम बच्चे, कल की आशा हम बच्चे, खीर बतासा हम बच्चे, ए युग निर्माता हम बच्चे, कल की आशा हम बच्चे। लाला जी एक लड्डू दो, अरे अपने बगल वाले को सेठ जी बनाओ ना, अपने बगल वाले को सेठ जी बनाओ, ठीक है ना। ये देखो, ये सेठ जी, फिर ये लाला, ये सेठ जी, ये बच्चे, ये सेठ जी, ये बच्चे, ऐसे बना लो, ठीक है ना। और अच्छे से मांगना है, जो अच्छे से नहीं मांगेगा उसको लड्डू नहीं मिलने वाला, ठीक है ना। तैयार हो गए क्या? चलो। लाला जी एक लड्डू दो, और लाला जी एक लड्डू दो, लाला जी क्या बोलते हैं फिर? और लड्डू जो चाहिए तो चार आने दो, लाला जी एक लड्डू दो, अरे लाला जी पैसे नहीं, और पैसे नहीं तो लड्डू नहीं, लाला जी आपकी मूछे, और कितनी लंबी है आपकी मूछे, और कितनी मोटी है आपकी मूछे, खोल कर बाहर आया, दुनिया पड़ी दिखाई, खाद मिली पानी भी पाया, ऐसा जीवन आया, इधर बड़ा ऊपर धरती में, नीचे इधर समाया। वन में मोर खुशी से नाचा, अपने पंख पसारे, नील जगड़ में चितक पड़े हैं जैसे अंतिम तारे, धीरे धीरे पाँव उठाता, गर्दन पहन खिलाता, सिर के ऊपर सजा बगीचा, उसमें फूल खिलाता, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, खेत रोना देता, बरसाते बहुत बढ़िया। देखो और भी अपने भैया बहने लोग आ गए हैं ना। हाँ एक बार और बोलना, एक बार और। हाँ अब बैठ जाओ, आ जाएंगे आप। अगर कोई अच्छे से पूछता है तो
आपको भी बाहर से बुलावा है कि आप भी जो कर रहे हो वो बाहर सीखने में आए।